starting point will be your syllabus, UPSC syllabus. Go through it once. And for people who come from sociology background, they will have a better idea as to, what those topics entail. But if you're not from sociology background, just go through the syllabus once. And if you're going to get a coaching for sociology, you can, there are few options. I'll let you know इसके बाद. But एक बार आप सिलेबस जब देखेंगे, सिलेबस देखने के बाद आपके जो जो की पॉइंट्स है, लाइक आप सेट पेपर 1 आप कुछ पोर्शंस उठाएंगे उसके एंड जस्ट स्टार्ट रैंडमली गूगलिंग इट, अगर आप बिल्कुल भी नए हैं इस पेपर के लिए. So if you random Google it, you will understand what is the basics about sociology. Now, when it comes to book list, I did not follow any particular book list because I had already done my graduation in sociology. तो मेरा काफी understanding level उस पे काफी अच्छा था. But there are certain books in market, such as Harlambus is there, and if you want to take coaching notes, they're also sufficient. I think more than sufficient. और इसके अलावा if you can also refer to Vikash Ranjan sir's notes because I look up to them, वो काफी अच्छे हैं. And apart from that, the best guide would always be your syllabus, PYQs syllabus, and at most आप किसी एक टॉपर के नोट्स देख सकते हैं और उनकी टॉपर्स आंसर शीट्स देख सकते हैं. तो मैंने पर्सनली सृष्टि देशमुख मैम की देखी थी और जागृति अवस्थी मैम की आंसर शीट्स चेक की थी. एंड आपको वहां से बस ये देखना है कि वो किस तरीके से लिख रहे हैं. सो दीज sources would be more than sufficient for your sociology preparation. And if you're taking any coaching, that would be best because आपके वहां से जो notes आएंगे आप उन्हीं को रेफर कर लीजिए. उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट में. सो दिस कम्स टू द स्टैटिक पोर्शन. ये इतना आप जब करते हैं तो आपका स्टैटिक पोर्शन काफी क्लियर हो जाएगा. इसके बियॉन्ड आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा सोशियोलॉजी में बिकॉज ये थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है. So I would suggest that you can, add different examples from newspapers or different magazines जहां पर भी social issues के बारे में कुछ discussion हो रहा है. तो वो examples हम हमेशा add करते चले अपने notes में. So this was more about where to, all the sources. Now I'll talk about how to prepare for it. So in paper 1 and paper 2, मैंने पहले अपने conceptual backgrounds काफी clear किया हुआ था कि, इस topic में क्या है या फिर मुझे पूरी understanding काफी अच्छे से क्लियर थी. सो वंस यू थ्रू विद दैट देन कम्स नोट मेकिंग पार्ट. यू कैन नॉट स्टार्ट विद नोट मेकिंग फ्रॉम डे 1. सो व्हेन यू अंडरस्टूड थॉरली अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक देन गो थ्रू द सिलेबस सामने रखिए एंड पिक अप A4 साइज शीट्स. सो नाउ you'll begin with topic number 1, which is, for example, sociology and common sense. So you're taking up in A4 size sheet, you write the topic sociology and common sense, and then just write static portion के. ये तो हुई नहीं सोशियोलॉजी में, क्या कर रहा हूँ मैं? Hello. Yeah, so you'll start with sociology and common sense. For example, एक topic मैंने उठाया and उस sheet पे you'll keep the topic and उसके बाद keep half of the sheet for the static portion जो भी आपको दिख रहा है अलग अलग sources से. And मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक टॉपिक के लिए एक ही सोर्स लीजिए बिकॉज क्या होता है ना कि हर एक आप डिफरेंट सोर्सेस पढ़ेंगे तो अलग अलग सोर्सेस में आपको मोर और लेस सेम मटेरियल मिलेगा. तो वो ओवरलैपिंग जो चीजें होंगी आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा. सो जस्ट रेफर टू वन सोर्स, दैट्स इट. एंड व्हाइल यू आर रेफरिंग टू वन टॉपिक, लाइक आई सेड सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, उसमें आप लिखेंगे सिर्फ मेजर पॉइंट्स. You don't have to copy the entire book into it. So when I made my notes, I only wrote 5 to 6 points per topic, depending on the weightage of the topic. So अगर मैं thinkers लिख रही हूँ तो thinkers के लिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिखा था. But for topics like these, जो छोटे छोटे topics हैं, sociology and common sense, sociology and history, economics, इनके लिए मैंने मुश्किल से 5 या 6 pointers लिखे थे static portion cover करने के लिए. So once you're through with those points, आपका स्टैटिक पोर्शन क्लियर, देन यू लीव सम स्पेस ऑन दैट सेम पेज ताकि अगर आपको कोई भी अलग से वैल्यू एडिशन का एग्जांपल मिल रहा है या फिर आपने कोई टॉपर नोट्स चेक किए और आपको उन टॉपर नोट्स में कोई भी एक अच्छा सा एग्जांपल हो गया, कोई अच्छा अलग थिंकर का एक व्यू पॉइंट हो गया, तो आप उनको डिफरेंट पेन्स में नीचे ऐड कर सकते हैं. सो दिस विल बी योर वैल्यू एडिशन टू योर स्टैटिक नोट्स.
and this is how I made my notes for paper 1 as well as paper 2. And apart from this, I also covered Neha Bhosle ma'am's notes. They're pretty dense. So if you're already through with sociology syllabus and the understanding part, only then refer to her notes, because उन notes पे काफी कुछ extra भी है जो आपको add करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. So just selectively pick up certain points from those notes and you can add on to your own personal notes. So this was more about note making. Then in sociology particularly, I would just say that go more on revision, because questions हर बार बहुत repeat होते हैं. If you go with the PYQ analysis, you will realize that one or the other topic is repeating every alternate year, and you can prepare those topics well in advance. You can ratify those topics and just go and you know put that answer exactly on the answer sheet, because वो बहुत brownie questions होते हैं और आप easily score कर सकते हो उनमें. Then comes, okay, so revision, and then comes the answer writing practice. तो आंसर राइटिंग के लिए यू कैन जस्ट ज्वाइन वन टेस्ट सीरीज, और उसमें दो तीन लोगों के ऑप्शंस मैंने देखे थे, बट आई पर्सनली फाउंड विकास रंजन सर्स टेस्ट सीरीज वेरी हेल्पफुल. तो आप वो लोग एक बार देख सकते हो. और मैंने अपनी सोशियोलॉजी की इवेलुएटेड टेस्ट कॉपीज में एक बार टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप लोग वो भी देख लोगे कि वो किस तरीके से कमेंट्स देते हैं. हिज कमेंट्स आर मोर लेस गुड, एंड एट द सेम टाइम उनके जो मार्क्स आते हैं वो काफी हद तक फाइनल स्कोर्स के इक्विवेलेंट रहते हैं. सो आई थिंक यू विल फाइंड इट गुड. बाकी अगर आप महापात्रा सर की देख रहे हो तो भी ठीक है. विजन आईएएस का मुझे आइडिया नहीं है. बाकी मैंने सिर्फ विकास रंजन सर को रेफर किया था, और मैंने सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया था. आई यूज टू कंपेयर माई आंसर्स विद रिस्पेक्ट टू सृष्टि देशमुख मैम और जागृति अवस्थी मैम, और बस मैं ये देखती थी कि उनके आंसर्स में क्या चीज यूनिक है जो मैं सीख सकती हूँ. बट डू नॉट ट्राई टू कॉपी देयर आंसर राइटिंग स्टाइल्स, बिकॉज everyone has a different writing style and you should stick to it. If you write in points, it's well and good, and paragraphs भी चलते हैं इस वाले पेपर में. So this was more or less a brief about my sociology strategy. बहुत कुछ खास नहीं किया था मैंने, बस मैंने ये कोशिश की थी कि मैं जितना सिलेबस है उसको ब्रीफ में कवर करके जाऊं, क्योंकि वहाँ टॉपिक्स काफी रेपिटेटिव आते हैं और हर टॉपिक में आप 150 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख पाते हो, टाइम ही नहीं होता. तो कोशिश करो कि मिनिमम अपने पास नोट्स रखो, ताकि उन 5 पॉइंट को ही आप वहां जाके रिप्रोड्यूस कर सकते हो. सो दैट इज मोर अबाउट इट. बट इफ यू वांट मी टू elaborate on any of those points that you want to ask, or if I have not covered them, you can ask me, because ये मोनोलॉग मैं नहीं चाहती कि मैं सिर्फ मोनोलॉग देती रहूं आप लोगों को. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. मैम, रिगार्डिंग द रिसोर्सेज, दो टॉपिक है, एक पेपर 1 में और एक पेपर 2 में, जिनके रिसोर्सेज में काफी दिक्कत होती है. पहला है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ इन पेपर 1, वो कहाँ से पढ़ा जाए, और दूसरा है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन पेपर 2. राइट. सो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ मैंने नेहा भोसले मैम के कवर किए थे, और उसके अलावा इन टॉपिक्स में ना आप ये देखो कि उनका जिस्ट क्या पूछ रहा है. वर्क, मैंने नेहा भोसले मैम के जब नोट्स देखे थे उसमें बस ये था कि एक बहुत सिंपलिस्टिक आइडिया दे दिया था कि वो किस चीज के बारे में है. फिर मैंने उसमें करंट एग्जांपल्स ऐड कर दिए. एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो लुक अप टू स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब वीडियोस. उसमें ये वाले टॉपिक्स काफी अच्छे से कवर किए हुए हैं और उन्होंने नोट्स भी दे रखे हैं, तो आप उन चीजों को रेफर कर लीजिए. अदरवाइज आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप हर एक थिंकर का देखिए कि हर एक थिंकर ने वर्क या इकोनॉमिक लाइफ पे क्या बोला है. फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स हैज टॉक्ड अ लॉट अबाउट वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, और उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं. फिर डर्कहाइम हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट I'm so sorry, I'm forgetting a lot of topics. या ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी. सो वो सारे टॉपिक्स भी थोड़े थोड़े ओवरलैप हो जाएंगे. Then you can also put different perspectives, like this was functional perspective, Marxian perspective, then feminist perspective with respect to work. For example, how women have been looked like division of labor. तो वो वाला टॉपिक आप ले सकते हो, लेकिन इसका कोई कॉन्क्रीट एक सोर्स नहीं मिलेगा. मैंने 3-4 जगह से ही लिया था. स्लीपी क्लासेस हो गया, नेहा भोसले मैम के नोट्स, और हरलंबस से 1-2 टॉपिक उठाए थे, और बाकी कुछ कुछ आंसर्स के जो मॉडल आंसर्स आपको मिलते हैं उसमें से आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए.
मैम PYQs के लिए रिलायबल सोर्स क्या है? सो PYQs के लिए दो चीजें मैं बोलूंगी। पहला तो आप पिछले 5 से 6 साल के पेपर लेके बैठिए और उनमें आप ये देखेंगे कि हर एक एंड ऑल्सो सो व्हेन यू आर टेकिंग द क्वेश्चंस ऑल्सो कीप योर सिलेबस विद यू। जस्ट मार्क कि ओके ये वाला टॉपिक इस ईयर में रिपीट हुआ है, इस ईयर में रिपीट हुआ है। सो यू विल हैव एन आइडिया कि ये वाला टॉपिक ऑल्टरनेट ईयर्स में रिपीट हो रहा है या फिर ये वाला टॉपिक 10 साल में एक बार भी नहीं आया। सो दैट इज हाउ यू कैन डू योर पर्सनल एनालिसिस। सेकेंड, जब मैंने विकास रंजन सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो उन्होंने 1 महीने पहले एक एनालिसिस दिया था खुद का। तो उन्होंने हर एक टॉपिक के आगे लिखा हुआ था दैट दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक अकॉर्डिंग टू हिज ओन एनालिसिस। तो मैंने वो एक बार चेक किया था एंड उनके जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स थे वो रिपीट हुए थे काफी। तो यू कैन गो हेड विद दैट। बाकी आई वुड सजेस्ट दैट डू योर ओन पर्सनल एनालिसिस, दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। Ma'am, also with regards to answer writing practice, how do we go about it? मतलब कि सीधा full length लगाने शुरू कर दें? I don't have a background in sociology, तो should I go with daily answer writing की दो because I was अभी तक trying to get a grasp over the subject कि क्या basic understanding है। So अब क्या मतलब कि what would be better कि full length सीधा लगाऊं या फिर दो टेस्ट ला के self analysis करते रहूं? देखिए, अगर आपका बिल्कुल भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि एक दिन में 2 से 5 आंसर्स आप लिख लो और उसके बाद उनको एनालाइज करो डेली। देन स्टार्ट विद आंसर राइटिंग अलोंग विद टाइम लिमिट लगाकर। तो उससे क्या होगा ना, आपका ग्रेजुअली एक मोमेंटम सेट होगा जो आप फाइनली जब आप लगे आपको कि हाँ ठीक है मैं आंसर्स अच्छे लिख रहा हूँ, टाइम लिमिट पे भी लिख रहा हूँ, देन यू शुड स्टार्ट विद योर 3 आवर टेस्ट। अदरवाइज बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है कि आपके टेस्ट पूरे नहीं हो पा रहे, अच्छे नहीं लिख पा रहे। तो स्टार्ट विद बेसिक्स। शुरू में 2 या 5 टेस्ट लिखो डेली एंड यू कैन ऑलवेज रेफर टू टॉपर्स आंसर्स एंड उसके बाद मैच करके देख लो खुद से कि अच्छा ठीक है ये वाला पॉइंट शायद मैं लिख देता हूँ। नोट्स में देख लो कि नोट्स में कौन सा पॉइंट मिस हो गया जो तुमने आंसर में कवर नहीं किया। सो यू कैन ऑलवेज ऐड दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में और कुछ प्रॉब्लम आएगी। धीरे धीरे करके यू विल कैच अप विद द स्पीड एज वेल एज द कंटेंट। इट विल एनरिच विद टाइम। Hello, ma'am. Am I audible? Yes. Ma'am, my question is regarding paper 2, as you have scored around 150 in paper 2, I guess. And Yeah, मैम अभी जब मैं आंसर्स लिख रहा हूँ पेपर 2 के साथ में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनको सोशियोलॉजिकल टच नहीं दे पा रहा। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है पॉपुलेशन पे भी तो मैम वहां पे आप थिंकर्स पुट इन करते थे। मैम क्वेश्चन की डिमांड तो पूरी बिना थिंकर्स की भी हो जाएगी, बट मैम क्या वो एंगल डालना थिंकर्स वाला हर क्वेश्चन में 3-4 थिंकर्स डालना वो कंपलसरी है इन पेपर 2? यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि जब हम लोग आंसर्स लिखते हैं स्पेशली पेपर 2 में तो हमें कई बार ये कमेंट्स मिलते हैं कि योर आंसर इज बिकमिंग मोर ऑफ जीएस टाइप। और हमें खुद भी लगता है कि बिल्कुल जीएस जैसा हो गया तो सोशियोलॉजी में डिफरेंट क्या रह गया। तो आपको ना इस चीज में नेहा भोसले मैम के नोट्स थोड़े हेल्प करेंगे। क्योंकि जब आप पेपर 2 की करेक्शन देखते हो, मैंने खुद ये देखा है कि जब आप थिंकर्स के नाम काफी ऐड करते हो यू गेट बेटर मार्क्स। एंड व्हेन आई वाज गिविंग माय टेस्ट सीरीज तो शुरुआत में मैं बिना थिंकर्स के देती थी अपना टेस्ट। उसमें मुझे मतलब स्कोर मेरा अराउंड 120 या 110 के आसपास रहता था। एंड उसके बाद वंस आई स्टार्टेड पुटिंग थिंकर्स मैंने कंटेंट पूरा सेम रखा। बस मैंने ये इंश्योर किया कि हर एक आंसर में आई एम गोइंग टू ऐड एटलीस्ट 2 थिंकर्स। एंड जब मैंने ये किया माई मार्क्स सडनली इंक्रीज टू 140-145। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। प्लीज ट्राई एंड इंश्योर कि जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं हर एक टॉपिक के, उन टॉपिक्स में एटलीस्ट आप 2 या 3 थिंकर्स ऐड कर लीजिए। और ये वाले थिंकर्स मुझको नेहा भोसले मैम के नोट्स में मिल गए थे। जनरली जो शुरू के टॉपिक्स हैं पेपर 2 के उनमें तो थिंकर्स आपको मिल जाते हैं, AR देसाई हो गया या फिर MN श्रीनिवास। लास्ट के टॉपिक्स के लिए डिफिकल्टी होती है जैसे पॉपुलेशन है। तो इसमें नेहा भोसले मैम के नोट्स में ना कई 3-4 थिंकर्स दे रखे थे। यू कैन पिक अप एनी 2 थिंकर्स इफ यू वांट and just add on to your notes. And if you see a question which is from those topics, you can always add those thinkers' name. And also, there's one more tip and suggestion that I would give it to everyone कि जब आप आंसर्स लिखते हैं थोड़े जेनेरिक वाले, जैसे आपको मिल गया कोई भी जेनेरिक सा GS टाइप का सवाल सोशियोलॉजी में और आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट है
लेकिन कोई थिंकर का नाम आपको दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप कोशिश कीजिए पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से सोचने की, जैसे फंक्शनल पर्सपेक्टिव, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो इसमें आप ये भी डाल सकते हो कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से सो एंड सो फोर्थ अकॉर्डिंग टू मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। तो आप यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 भी कनेक्ट कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो गिविंग थिंकर्स, सोशियोलॉजिकल टच आ जाएगा आपके पेपर 2 में। इफ यू हैव एनी थिंकर इन योर हेड तो आप वो भी डाल सकते हो, जैसे कि दीपांकर गुप्ता, योगेंद्र सिंह और एम एन श्रीनिवास। दीज ऑथर्स हैव मोर लेस कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक। तो आप कहीं कहीं से ना उनके भी देख लेना कि एम एन श्रीनिवास ने पॉपुलेशन को लेके कुछ कहा है या नहीं, सो एंड सो फोर्थ। तो आप ये कॉमन 5-6 थिंकर्स अपने दिमाग में रखो और उनके कुछ कुछ देख लेना कि इस टॉपिक पे उन्होंने कुछ बोला या नहीं, एंड जस्ट एड ऑन टू योर नोट्स। सो अगर आप इतना करते हो ना, पेपर 2 में आपका स्कोर सडनली बहुत शूट अप करेगा। एंड मैम जैसे अभी देयर आर 50 और डेज लेफ्ट फॉर मेंस, तो अब मैम अभी हमें Yes. किस चीज पे फोकस ज्यादा करना चाहिए फॉर टेस्ट सीरीज, या फिर हमें मैम मैंने जैसे पीवाईक्यूज नहीं लिख रखे सारे, तो मुझे पहले पीवाईक्यूज को प्रायोरिटी बनाना चाहिए या फिर टेस्ट के लिए जाना चाहिए? आप पीवाईक्यूज पहले देखो, बिकॉज कई बार क्या होता है आपको टेस्ट में समझ में नहीं आ रहा होता कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम की। इफ यू लुक एट पीवाईक्यूज यू विल सी कि थोड़े थोड़े करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन बैठो 2 पेपर लेकर, लास्ट एंड लास्ट टू लास्ट ईयर के। तो इस तरीके से आप 3-4 दिन में बैठोगे ना, तो 3-4 दिन में आपके आराम से 6-7 साल के पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे। जस्ट डू वन थिंग, व्हेन यू आर लुकिंग एट द पीवाईक्यू, साथ में सिलेबस लेके बस ऐड करते रहना कि ओके सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस वाज आस्क्ड इन 2016 2017, और उसके आगे ऐड करते रहना टॉपिक के सामने या फिर कंटेंट्स के सामने। तो यू विल हैव अ प्रीटी क्लियर आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एंड द ट्रेंड दैट आई अंडरस्टूड वाज कि थोड़े से करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स पे सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस काफी सारे आ रहे हैं। तो you will always find at least 4 questions which are not in the syllabus, but they are asked from general current affairs or generic social issues which are going on. तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके जाना कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आप किस तरीके से उनको टैकल करोगे फाइनली। And ma'am, what was your approach while attempting? You attempted the 20 markers first or the 10 markers? या सो आई टेल यू वन थिंग, मेरी एक गलती हो गई थी, वो ये कि फाइनली जब टेस्ट सीरीज लेके गई थी, तो टेस्ट सीरीज में यूजुअली हमें 20 मार्क्स के लिए 3 पेज दिए गए थे, और वहां जाकर पेपर 1 में हम लोगों को 4 पेज दिए थे और पेपर 2 में 3 पेज। तो वहां जाके मैंने देखा कि यार वो 4 पेज हैं, मुझे चारों के चारों पेज भरने पड़ेंगे, एंड आई यूज टू अटेम्प्ट 20 मार्क्स फर्स्ट। तो वो करते करते मैंने 3 की जगह वो 4 पेजेस भरने में मेरा टाइम मैनेजमेंट काफी गड़बड़ हो गया, एंड आई कुड नॉट अटेम्प्ट 2 10 मार्कर्स इन पेपर 1। तो वो टाइम मैनेजमेंट इशू की वजह से मेरा पेपर छूट गया, पेपर 1। एंड अगर वो हो जाता तो आई कुड हैव स्कोर्ड 300 ऑन बियॉन्ड। तो प्लीज डोंट मेक द सेम मिस्टेक। अगर आपको वहां पर आपको दिख रहा है शीट्स ऊपर नीचे है, एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा जब आप मेंस लिखेंगे कि 3 है या 4 शीट्स हैं, और उसके बाद अटेम्प्ट करिएगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप 20 मार्कर्स पहले अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज आप वेटेज देखेंगे तो 20 मार्कर्स का ज्यादा है। तो उनको आराम से अच्छे से करके टाइम डिवाइड उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा। जैसे मैं शुरू के 1 hour 15 मिनट्स में मैं 20 मार्कर्स खत्म कर देती थी, एंड उसके बाद मैं अपने 10 मार्कर्स पे जाती थी, क्योंकि 10 मार्कर्स कभी कभी थोड़े नए भी आ जाते हैं जो टैकल करने पड़ते हैं एट द सेम टाइम। Okay, thank you. यस Ma'am, 50 days sufficient for rectification of things now? Absolutely. And So ma'am, I'll how tell you do we one go thing. dividing time between GS and optional, these two questions? यार ऑप्शनल का वेटेज काफी ज्यादा होता है, तो मैं ये कहूंगी कि यू कैन डिवोट 50% ऑफ योर टाइम टू सोशियोलॉजी, दैट वुड बी फाइन। ओके, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इफ यू हैव योर प्रायर प्रिपरेशन इन सोशियोलॉजी और नॉट। अगर आपको लगता है आपका ऑप्शनल प्रिपेयर्ड है, तो आप 30 to 40% ऑफ योर टाइम यू कैन डिवोट टू योर ऑप्शनल। बट आप मेरी मानिए तो आप ऑप्शनल को अच्छा खासा वेटेज देके चलिए, बिकॉज जीएस में आपका GS 1 2 and 3 बचता है। GS 4 और आपका essay डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आप वो कोशिश करिए कि आप जो essay और एथिक्स में टाइम बचा रहे हो ऑप्शनल को ही दीजिए, बिकॉज आपका ऑप्शनल या तो आपको बना सकता है आपका स्कोर, या फिर वो पूरा गिरा देगा, क्योंकि जीएस में मोर और लेस सब लोगों के
अराउंड सेम मार्क्स आते हैं. सो दैट कम्स टू हाउ मच टाइम. एंड व्हेन यू आस्क मी कि 50 दिन के अंदर रटिफिकेशन कैसे करें, तो आप बस इतना कोशिश कीजिए कि मिनिमम से मिनिमम नोट्स बनाइए. अब अगर मैं बात करूं एक टॉपिक को लेकर, आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस में मैंने सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखे थे. दैट सोशियोलॉजी इज, आई मीन, इट्स नॉट कॉमन सेंस बिकॉज 1 2 3 4 5. एंड मैंने उन 5 पॉइंट्स को ही रटिफाई किया था बार बार. इन 5 पॉइंट्स के अलावा मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखे थे. फॉर एग्जाम्पल, जेंडर इज नॉट कॉमन सेंस बिकॉज मार्गरेट मीड का एक एग्जाम्पल था और एक पॉवर्टी पे एग्जाम्पल था. दैट इज इट. इससे ज्यादा मैंने सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस में कुछ कवर ही नहीं किया था. तो अगर आप इतने ही नोट्स बनाएंगे, इनको रटिफाई करना बहुत इजी होगा. एट द सेम टाइम जब आप पेपर देने जा रहे होंगे तो आप 1 घंटे पहले इनको रिवाइज बहुत अच्छे से कर सकते हो, और सेम आपका आउटपुट वहां पर एग्जाम्स में दिखेगा. एंड अगर आपने नोट्स नहीं बनाने शुरू करें तो भी 50 दिन है, आपको आराम से अगर लेके चलो पेपर 1 एंड पेपर 2, 10-10 दिन में दोनों के नोट्स बन जाएंगे. बिकॉज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, 5 पॉइंट लिखना है आपको हर टॉपिक पे, तो इजीली हो जाएगा. एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि कहाँ से लिखेंगे, तो जस्ट सिट विद योर सिलेबस एंड इफ यू वांट 2-3 सोर्सेज लेके बैठो, और उन 2-3 सोर्सेज में से सिर्फ उनके यूनिक पॉइंट्स उठा लो. कुछ कुछ ओवरलैपिंग मटेरियल होगा, लीव इट. 3 पॉइंट्स आपको हर नंबर से मिल गए, 3 पॉइंट्स आपको नेहा भोसले मैम के नोट से मिल गए, फिर आपने अपना तीसरा सोर्स उठाया, उसमें आपको लगा सब कुछ ओवरलैपिंग है, तो कीप इट असाइड. उतने पॉइंट्स है काफी है. अगर आपको बहुत कंसाइज वे में नोट्स चाहिए तो आप एक बार स्लीपी क्लासेस के नोट्स एक बार चेक कर लो. वो ऑलरेडी बहुत कंसाइज है, वो आपको हेल्प कर लेंगे, और आप एज इट इज भी उनको यूज कर सकते हो. साइड बाय साइड अगर थोड़ा बहुत खुद का एडिशंस करना है वो कर लो, अदरवाइज उनके नोट्स बहुत कंसाइज है, उनकी वीडियोस भी बहुत कंसाइज है, सो यू कैन रेफर टू इट. एंड मैम, इज मतलब देयर अ मैं पर्टिकुलर क्या बोलते हैं जी. उसको, कि कितने नंबर ऑफ थिंकर्स यू नीड टू पुट इन एन आंसर? क्योंकि इफ व्हेन आई रीड सिंघानिया, सॉरी, व्हेन आई रीड सांगवान्स बुक, हर टॉपिक हैज गॉट अ लॉट ऑफ थिंकर्स, लेकिन जब लिखना शुरू करते हैं तो वी हार्डली गेट स्पेस टू राइट 3 या 4. ट्रू, तो 6 याद करने का फायदा क्या अगर लिखने चाह रही हैं तो? मैं वही बोल रही हूँ कि आपको हर एक में ना बस इतना देखो कि कितना आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो. डू नॉट गो ओवरबोर्ड विथ थिंकर्स. अगर आप मैक्सिमम 4 या फिर 5 बहुत है, बहुत से भी ज्यादा है. मैं कोशिश करती थी कि जो बहुत यूनिक क्वेश्चंस होते थे, जो जिनमें ऑलरेडी थिंकर्स बहुत मिल जाते थे, उसमें भी मैं मैक्सिमम 4 ही यूज करती थी थिंकर्स. और जिन टॉपिक्स में थिंकर्स मिलते ही नहीं थे उनमें सिर्फ 2 2 या फिर एक भी काम करता है कभी कभी. तो 4 से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. इफ यू हैव मोर तो 5. एंड डोंट थिंक कि उस पर आपके मार्क्स कटेंगे. तो दिस इज अ स्वीट स्पॉट. एंड अगर आपको नितिन सिंघानिया, सॉरी, नितिन सांगवान में अगर आपको इतने थिंकर्स मिल रहे हैं, तो जस्ट गो विद द फैक्ट कि आपके उनमें से ऑलरेडी कौन से थिंकर्स आपको याद है. बस उनको नोट कीजिए, टॉप 5 सिलेक्ट कीजिए और उन्हीं को लिख लीजिए अपने नोट्स में. एंड देन डू नॉट गो बैक टू दैट बुक. बस अपने नोट्स को ही फिर अपना बाइबल समझकर उसी को ही रटिए बैठकर. दैट्स इट. मैम गुड हेलो. आफ्टरनून. हाँ जी. Ma'am, in 20 marker questions, can we write one page or write only 3 out of 4 in examination hall? I could not understand your question. One like 4 pages are given for 20 markers in real जी. examination. So can we write one page? Yes, yes, you can leave your one page. And if you want, तो आप थोड़ा स्पेसिंग देके लिख लीजिए ताकि 4th पेज पे आप उसको आधा कवर कर लो या कुछ कर लो. लेकिन ये आई एम नॉट पर्टिकुलरली श्योर कि आपके साथ भी आपको 4 पेज मिलेंगे या नहीं, क्योंकि हमें पेपर 1 के 20 मार्कर्स में 4 पेज थे, लेकिन पेपर 2 जो था हम लोग एक्सपेक्ट करके गए थे कि 4 पेज मिलेंगे उसमें भी, बट उधर नहीं थे. तो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग, आपको आंसर बुकलेट मिलेगी, तो आप पहले चेक कर लेना अच्छे से कि 3 है या 4 है, उसके बाद ही अटेम्प्ट करना. और पूरा भरना जरूरी नहीं होता है. एंड इफ यू थिंक कि आपके पास कंटेंट है, लिख सकते हो, लिख देना, बट आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होना चाहिए उसके बाद. बाकी छोड़ सकते Ma'am, हैं. currently I am taking 30 minutes more in completing my paper. So I don't know how to manage time. आई एम सॉरी, आपकी थोड़ी आवाज एको कर रही है. आप अपना क्वेश्चन एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए. आई रीड ओवर देयर. मैम, शी इज सेइंग दैट उसको 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है पेपर कंप्लीट करने में. तो हाउ टू मैनेज जी. दैट? देखिए, वो तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगा. आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपना टाइम नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर नंबर ऑफ मार्क्स से डिवाइड कीजिए. तो मैं क्या करती थी कि मैं 20 मार्कर्स को प्रायोरिटी देकर ये देखती थी कि 20 मार्कर्स में मेरा ऑलमोस्ट 50% वेटेज है,
तो मैं 1 hour 15 minutes उनको देती थी, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा, अगर आप 1 hour 15 minutes लेके चलेंगे तो आपका 5 मिनट ऊपर नीचे हो ही जाएगा। सो कीप योर थॉट कि आपको इतना स्ट्रिक्टली कवर करना ही करना है, बिकॉज देर इज नो अल्टरनेटिव टू इट। अगर आपको लग रहा है कि फिर भी आप कवर नहीं कर पा रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ 1.5 पेज ही लिखो। आप थोड़ा सा अपना कंटेंट कम कर लो, बट प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना। क्योंकि अगर आप एक एवरेज आंसर लिखते हो, आई मीन सॉरी 2 एवरेज आंसर अगर लिखते हो और एक बहुत अच्छा आंसर लिख दिया, तब भी आपके 2 एवरेज आंसर्स का स्कोर काफी अच्छा बैठेगा। तो अगर नहीं कर पा रहे हो, अपना कंटेंट कम कर दो, बट प्लीज इंश्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग द पेपर, बोथ पेपर 1 and 2। मैम पैराग्राफ आंसर राइटिंग सूटेबल है सोशियोलॉजी के लिए? अब मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। I mean, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना वर्क करता है सोशियोलॉजी के जी लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कुछ आंसर्स अपने पैराग्राफ में लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स में लिखे हैं। सी, whenever you are attempting your paper, हमेशा आप ये सोचिए कि आपका एग्जामिनर उसको जब पढ़ेगा, उसको वो चीजें बस क्लियरली दिखनी चाहिए। तो हम लोग आपको ये कमेंट्स मिलते हैं कि अपनी राइटिंग अच्छी करो, या फिर अंडरलाइन करके आओ, या पॉइंट्स में लिखो। ये सब सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि आपका एग्जामिनर उस पेपर को देखते ही वो समझ में आ जाए कि ओके, इसने यहाँ पर ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। उसको जितनी मुश्किल होगी आपका आंसर पढ़ने के लिए, उतने वो आपको मार्क्स कम देगा, चाहे आपने ब्रिलियंट कंटेंट दिया हो। एंड किसी एक इंसान ने बिल्कुल एवरेज कंटेंट लिखा है, बट उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो उसको मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप कोशिश कीजिए कि अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा, और अपनी हैंड राइटिंग स्पेशली, एंड विद प्रेजेंटेशन इफ यू राइटिंग इन पैराग्राफ्स, जस्ट गिव एम्पल स्पेसेस एंड मार्जिन पे थोड़े, जब सेकंड पैराग्राफ आप शुरू करें तो नेक्स्ट मार्जिन से शुरू कीजिए, बिकॉज दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। आपका प्रेजेंटेशन एक बार दिमाग पे रख के जाइए कि आपको इस तरीके से करनी है, सो दैट योर एग्जामिनर हैज टू गिव यू मोर मार्क्स। Good afternoon, ma'am. Very हाँ जी। great. Ma'am, since the time is less, I would like to ask about, is there any one-stop source for the current affairs preparation, like from where we can get enough topics on which we can brainstorm upon at the last minute? फॉर सोशियोलॉजी, क्योंकि मेरे को विकास रंजन सर की एक करंट अफेयर की बुकलेट मिली थी, मैंने वो कवर कर ली थी लास्ट मोमेंट पे, बट वो ज्यादा कुछ हेल्प नहीं करती। क्योंकि मोरलेस जो आप जीएस के लिए प्रिपेयर करते हो वो थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर एनवायरमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था, वो अटेम्प्ट नहीं किया था मैंने, बट दैट इज वन क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स, तो मैंने वो कर लिया था। इफ यू वांट, एक बार जितनी भी सोशियोलॉजी की कोचिंग्स हैं उन सब में वो कुछ कुछ प्रोवाइड करते होंगे मटेरियल, तो वो आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। Okay, okay. लेकिन Hello, ओके, ma'am. सो इफ यू, ओके आई जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट। अगर आपको कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाता है, कोई भी, आप बस ये सोचिए कि सोशियोलॉजी के थिंकर्स कैसे सोचेंगे उसको। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, डर्कहाइम क्या बोलेगा कि ओके दिस इज वेरी गुड, जो हो रहा है सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। देन यू विल कम विद कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सियन, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव। तो जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, आपके पास थिंकर्स नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं है, आपके एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट बन जाएंगे डिफरेंट स्ट्रीमलाइन, डिफरेंट थॉट्स को लेकर, जितने भी सोशियो में हैं कवर्ड, जो कि आपने पढ़े भी होंगे मेथोडोलॉजीज में, और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें अगर लिख लोगे ना आंसर, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मैम Yes, बिना ma'am. थिंकर के ऑप्शन दिए भी हम लोग पर्सपेक्टिव कोट कर सकते हैं? आई एम सॉरी, कम अगेन। मैम बिना थिंकर का, पर्टिकुलर थिंकर का रेफरेंस दिए बिना भी हम लोग पर्सपेक्टिव को कोट कर सकते हैं आंसर्स में? जी जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप डायरेक्टली डाल सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वुड से सो एंड सो फोर्थ, आपका फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा वहां पर, अगर कोई रैंडम क्वेश्चन है, कि ये ट्रिक मैंने उसके लिए बताई है। हेलो मैम। ओके Am I मैम। हाँ audible? जी जी। जी मैम, मैंने लास्ट ईयर मेंस लिखा था। एक्चुअली मेरे पेपर 2 में मतलब मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं गया था, फिर भी मेरे 130 मार्क्स के करीब आए गए थे। लेकिन पेपर 2 में, पेपर 1 मैंने बहुत पढ़ा था, कुछ उसमें कुछ मार्क्स नहीं आए मेरे। अब मेरे को समझ जी में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी इतनी प्रिपरेशन थी नहीं कि मैं कुछ एक्सपेक्ट करूँ वहाँ पे। तो इम्प्रूव कहाँ पे करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
सो पेपर 1 में अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मुझे मैम ऐसा वन लगता है या सेकेंड मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, ये मीटिंग खत्म होने जी वाली है, तो मैं पूछ रहा था कि कोई टाइम कंस्टेंट है या वी कैन शेयर द लिंक अगेन? आई थिंक वी कैन शेयर द लिंक अगेन आई मीन सो या श्योर अगर यही कंटेंट अभी एक्सटेंड हो सकती है तो वेल एंड गुड बट आई कैन जॉइन अगेन इफ यू वांट प्रीमियम वर्जन चाहिए होता है, तो इसमें 2 मिनट में खत्म हो जाएगा मैम। अच्छा ऑलराइट तो आई थिंक इट्स बेटर टू जॉइन अगेन ओनली आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक उसी समय ओके ओके, तो फिर मैं नया लिंक डालता हूँ मैम। ओके जी श्योर हाँ हाँ एक हेलो बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए हाँ मैम, एक्चुअल में लास्ट ईयर मैंने मेंस लिखा था, मेरे पेपर 2 में 130 के करीब मार्क्स थे और पेपर 1 में 98 के करीब मार्क्स थे। एक्चुअली में पेपर 1 के लिए बहुत पढ़ा था मैंने, लेकिन पेपर 1 में इतना स्कोर नहीं रहा, लेकिन पेपर 2 में हार्डली में जो ऑप्शन को जितना टाइम दिया था उसका 20-30% पढ़ के गया था मैं, तब भी उसमें स्कोर आ गया। तो समझ में नहीं आ रहा वो स्कोर क्यों आया है, कैसे आया है, कहाँ इंप्रूव करूँ उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मुझे 3-4 पॉसिबिलिटीज लग रही है कि क्यों आपका स्कोर पेपर 1 में कम रहा होगा। पहला तो ये कि पेपर 1 में क्योंकि ऑलरेडी इतना कंटेंट होता है हर बच्चे के पास, तो हर एक का आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। जैसे थिंकर्स को लेकर सब सेम चीजें कोड करते हैं, तो एक आपके ऊपर खुद का बर्डन हो जाता है कि आप उस आंसर को यूनिक कैसे बनाओ। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि उसमें मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स डालने की। कोई भी नॉर्मल सा भी अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है जैसे कॉमन सेंस वाले फिर से मैं बोलूँ तो उसमें आप 2 यूनिक अपने एग्जाम्पल्स रेडी रखिए कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें ये वाले एग्जाम्पल्स डालूंगा जो कि कॉमन सोर्सेज में अवेलेबल नहीं है। दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा है उस टॉपिक के लिए तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसमें वो हर एक चीज डाल दें। तो कई बार मेरे को ये टॉपिक लिखा और मुझे लगता है कि इसमें मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सब कुछ उस एक छोटी सी जगह में फिट करने की। और जब एग्जामिनर वो आपका वो पढ़ रहा होता है आंसर, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उसको समझ में नहीं आता कि आपने लिखा क्या क्या है और इतना सारा कुछ लिखा है तो वो तब भी नंबर नहीं देता। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना जो नोट्स आप शॉर्ट बना रहे हैं सिर्फ मेन पॉइंट्स ही अपने आंसर में लिखिएगा। और जैसे अगर आपने बोला कि पेपर 2 में आपके मार्क्स ज्यादा थे, तो ऐसा हो सकता है कि पेपर 2 में आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स आते होंगे और आपने 5 पॉइंट्स लिखे और आपने खत्म कर दिया वो आंसर। तो उस एग्जामिनर को कलेक्ट करते वक्त काफी क्लैरिटी मिल गई, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, वहां आपको उसको पॉइंट्स उसने दे दिया आपको। और पेपर 1 में शायद ये चीज ना हुई हो। तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ टू द पॉइंट चीज लिखिए। एंड अगर आपको ज्यादा आता भी है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ जितना पूछा गया है उतना ही जवाब दें। और उसमें भी प्रायोरिटाइज कीजिए कि आपको कौन सा पॉइंट पहले लिखना है और या कौन से 5 पॉइंट लिखने हैं उन 10 पॉइंट्स में से। तो मेरे ख्याल से ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई चीज कमी हो रही थी पेपर 1 में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि यही 2 रीजन हो सकते हैं आपके पेपर 1 में कम नंबर आने के। एक्चुअली पेपर 1 मतलब आंसर राइटिंग मैंने उतनी नहीं करी थी सच, तो शायद वो रीजन हो सकता है कि कैसे उनका आर्टिकुलेट करना आंसर वहाँ पे समझ में नहीं आया मेरे को। तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार आप टॉपर्स आंसर्स एक बार चेक करिए पेपर 1 के लिए, बिकॉज दोनों में आपका राइटिंग स्टाइल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एंड एक बार जब आप टॉपर्स आंसर्स देखेंगे और आप खुद के आंसर्स कंपेयर कीजिएगा तो देखिए कि अभी कमी कहाँ आ रही है, या फिर पॉइंट्स पे कमी आ रही होगी। क्योंकि 3-4 चीजें होती है एक आंसर में। एक तो होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो आप लास्ट में इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि उस एक क्वेश्चन के लिए आप क्या लिखेंगे और उस टॉपर ने क्या लिखा है। फिर आप दोनों को कंपेयर कीजिएगा कि अच्छा ठीक है मेरे में ये पॉइंट्स नहीं लिखे, या फिर शायद मैंने एग्जाम्पल नहीं डाला, या फिर प्रोबेबली मेरा ये एग्जाम्पल और बेटर हो सकता था। सो व्हेन यू डू दैट यू विल सी कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है। तो ये चीज आप खुद से बहुत आराम से कर सकते हैं। बस इतना कीजिए कि आप वो आंसर्स रखिए उस टॉपर के जो कोई भी आपको अच्छा लगता है। आई वुड सजेस्ट कि सृष्टि मैम की एक बार देख लीजिएगा, उनके काफी अच्छे आंसर्स थे। एंड उन आंसर्स में फिर क्वेश्चन देखकर अपना आंसर लिखिए और फिर बाद में उनसे कंपेयर कीजिएगा। दैट इज इट। ओके मैम, वन लास्ट क्वेश्चन कि मैम मेरे पेपर 2 में लास्ट टाइम नोट नहीं थे, इस बार मैंने बहुत नोट बना लिए, कहीं वो बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? जी नोट्स बहुत सारे होना भी एक बैकफायर कर सकता है, लेकिन आपके पास अभी टाइम है। आप कोशिश कीजिए कि उन्हीं नोट्स में से ना सिर्फ मेन पॉइंट छाटिए। अगर आपने एक टॉपिक पे कम से कम 2 पेज लिख लिया तो कोशिश कीजिए कि उसको कंसाइज कीजिए 150 to 200 वर्ड्स में, बिकॉज आपको एट द एंड लिखना उतना ही है। तो एक्स्ट्रा पोर्शन का कोई फायदा नहीं।
और अगर आपके पास लिखे हुए हैं नोट्स, कोई बात नहीं, उनमें आप हाईलाइट कर लीजिए कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर 150 मार्क का अगर कोई क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक पे, तो आई एम ओनली गोइंग टू राइट दीज 10 पॉइंट्स, दैट्स ऑल। ओके मैम, थैंक यू। Good afternoon, ma'am. Hello, ma'am. हाँ Good जी, afternoon. गुड आफ्टरनून। Ma'am, I have a few questions, ma'am. Like जी। the first one, I'm sorry for being naive. Generally, when I observe the topper copies, topper marks to evaluate how the correction is being done, then I observe that people used to get 10 to 15 marks. I mean, comparing people who got more marks, like about 270 and all, people used to get at least 10 to 20 marks more in paper 1 than in 2. But you got paper 115, paper 2, which I feel is the highest in few years. I mean, one of the highest. So how do you assess that marks, ma'am? ओके, सो पेपर 1 और पेपर 2 जब भी मैं अपने टेस्ट सीरीज में देती थी, तो मेरा पेपर 1 पेपर 2 दोनों में लगभग 140 क्रॉस कर जाता था। बट क्योंकि मैं पेपर 1 पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो ऑलमोस्ट मेरे 10 to 15 मार्क्स में कम रह गए। बट पेपर 2 में ज्यादा मार्क्स आने का रीजन मैंने अभी पहले बताया था, तो वो यही था कि हर एक टॉपिक में आप उसको कोशिश कीजिए कि सोशियोलॉजिकल टच कैसे दे सकते हो, क्योंकि जितने भी लोग उस पेपर 2 में लिख रहे होंगे वो मोर और लेस जीएस टाइप आंसर लिखेंगे, और आपको जो सोशियोलॉजिकल टच उसको आंसर को देना है वो आप 2 तरीके से दे सकते हो। या तो आप, अगर कोई जेनरिक क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं समझ में आ रहा कि उसके थिंकर्स कौन से थे, तो आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव्स पे बात कर लीजिए कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में एम एन श्रीनिवास ने सो एंड सो फोर्थ ये बात कही थी, या फिर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में ए.आर. देसाई ने ये बोला था। तो ट्राई एंड गिविंग दोज व्यू पॉइंट्स फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एंगल, एंड इफ यू नो सर्टेन थिंकर्स ऑलरेडी, तो आप वो थिंकर्स कोट कीजिए, बिकॉज उस पेपर में सिर्फ ट्रिक यही है कि आप जितने थिंकर्स उसमें डालेंगे तो आपका आंसर सोशियोलॉजिकल दिखेगा एज कम्पेयर टू समवन हु इज राइटिंग अ वेरी जीएस टाइप ऑफ आंसर। तो जैसे मैंने पहले बोला, मैं अभी फिर से यही बोलूंगी कि हर एक टॉपिक के लिए कोशिश कीजिए कि आप एट मैक्स 2 या 3 थिंकर आप लिख पा रहे हैं। जो टॉपिक्स लास्ट में हैं, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया और अर्बनाइजेशन हो गया, इनमें देखिए कि कोई किसी थिंकर ने कोई बात कही है या नहीं कही है। तो मैं हमेशा 5-6 थिंकर्स अपने मेन रखती थी, और मैं कोशिश करती थी कि अगर वही थिंकर्स ने उन टॉपिक्स पे कुछ बोला है तो मैं उन्हीं को कॉपी कर लेती थी। तो टॉपिक लिखा, 3 थिंकर्स एट मैक्स, मान लीजिए कि आपको उन 3 थिंकर्स का कोई ना कोई पर्सपेक्टिव उसमें डालना ही डालना है, और जब ये करेंगे आप उन्हीं नोट्स को दोबारा रिवाइज करेंगे, आपके आंसर्स में वो चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, एंड योर स्कोर विल आल्सो इंप्रूव। Thank you, ma'am. And you are telling to write 1 to 2 answers. Then I have suppose there is a question called write on patriarchy. Then I feel there are 2 approaches. Like I have like 5 to 6 thinkers whom I can include in patriarchy, like Karuna Ahmed and all. I can include 5 to 6 thinkers. That is one way of writing. And second thing, what I felt is, I mean, almost all of them nearly are saying the same thing, ideological thing. So if I write in economic sphere, this thinker is telling this thing, and religious sphere this one, and then for the rest of the dimensions I don't know anything, but I write GS type answers in the remaining dimensions. Which is the better approach? The first one where I write maximum thinkers, or second one where I write maximum dimensions? I would suggest that write maximum dimensions, because आप जब dimensions लिखोगे ना, 5 से 6 dimension भी अगर आप mention कर रहे हो, तो उसमें automatically 5 से 6 thinkers आ जाएंगे एंड डायमेंशंस भी आ जाएंगे, तो आपका वो आंसर ज्यादा एनरिच्ड हो जाएगा। लेकिन अगर डायमेंशंस नहीं भी आ रहे हैं आपको दिमाग में, तो आप कोशिश करिए थिंकर्स ही डाल दो, चलेगा। और डायमेंशन से एक ये चीज हो जाती है कि सामने वाले को लगता है कि आपका पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड है, लाइक यू आर सेइंग समथिंग इन अ कनेक्टेड चेन, तो वो थोड़ा वेटेज ज्यादा मुझे लगता है कि वो करेगा। बाकी अगर आपको थिंकर्स बहुत सारे, आपको लग रहा है कि सबको सेम बातें कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर बहुत जेनरिक सा क्वेश्चन है, लाइक व्हाट इज पेट्रियार्की, so you've defined patriarchy, then you will talk about, okay, these many different authors have said something, या फिर you'll talk about that, patriarchy has been looked upon from these many perspectives. You put it up, and you can also give an example that this is how patriarchy is working, and you can also give a futuristic perspective कि आज के जमाने में इतना नहीं हो रहा है, या फिर so and so author has said that things are improving, or maybe a futuristic perspective if you think it is going well with the topic. Otherwise you can end on with critique. अगर आप आपको लग रहा है उस टॉपिक में क्रिटिक अच्छा जा रहा है, तो आप वो डाल दीजिए। फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव जा रहा है तो वो भी डाल सकते हैं। अदरवाइज कोई थिंकर का आपको लगता है कंक्लूडिंग रिमार्क है, तो आप
वो भी ऐड कर सकते हो। Okay, thank you. And I have two more questions. Like हाँ जी। yesterday I went through your copies in one of the copy, it was asked write short notes on agriculture class structure, something like that. And in first page you wrote in point wise, and then in second page you wrote paragraph wise. I mean, did you consciously think that this is how I need to write, or if you don't have any points, you write in paragraph? Because I generally write in points, so should I need to change or something like that? No. Write in any way you're writing. Just make sure कि वो आपका आंसर प्रेजेंटेबल हो. That's all. And आपने जो मेरी कॉपीज देखे होंगे, did you see it on Triumph website? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The last paper S9, so that paper I've seen. Yeah, so I'll tell you one thing. एक बार जब आप मेरी Triumph वाली कॉपीज देख रहे होंगे ना, उसमें उन्होंने एक चीज गड़बड़ की है. उन्होंने मेरे शुरू के आंसर्स अपलोड कर दिए हैं जो कि मैंने प्रीलिम्स से पहले लिखे थे. एंड दोज आंसर्स आर नॉट वेरी गुड. तो आप एक बार डेट चेक कर लेना. डेट अगर प्रीलिम्स के पहले की है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप वो आंसर्स देखो, बिकॉज उसमें मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे एक बार बात कर लूँ कि मेरे प्रीलिम्स के बाद वाले आंसर्स वो अपलोड कर दें, या फिर मैं खुद भी चेक करती हूँ कि मेरे पास होंगे. तो आप सिर्फ लास्ट के 2 कॉपीज ही चेक करिएगा. ये सब लोगों के लिए, इफ एनीवन इज लुकिंग एट माय आंसर्स. The starting words were from 2021 December. हाँ, वो वाले मत देखिएगा. Yes, ma'am. And ma'am, the last question. Suppose there is a question called what are the present challenges in agrarian class structure? Same question. So should if I have a point like there is footloose labor, which is told by Bremen or something like that. So he told in the context of 1960s and 70s when Green Revolution was there. So should I write his name and tell that, because he's only asking about contemporary times? So you can always put up that thinker, but आप ये भी बोल सकते हैं that this is true for the current times as well. तब ये चीज ऐड कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि पुराना पर्सपेक्टिव अभी भी अगर रेलेवेंट है तो आप ये एक लाइन ऐड कर सकते हो. अदरवाइज डू नॉट थिंक कि ये वो कंटेम्प्रेरी है या पुराना है. जस्ट राइट इट. क्योंकि जब आप एग्जामिनर आपको चेक कर रहा होता है, उसको लगता है कि अच्छा ठीक है थिंकर है, साथ में बात जो कही गई है वो भी सच है, तो वो इतना ध्यान नहीं देता कि ये पहले बात कही गई थी या अभी बात कही गई है. कोशिश कीजिए कि जब आप नोट्स बना रहे हो अपने, आजकल के जो कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, जैसे कि योगेंद्र सिंह हो गए, उनका भी काम अब मतलब थोड़ा नया ही है. एक अभिजीत पाठक है सर, आप प्रोफेसर अभिजीत पाठक JNU के, आप उनका एक बार थोड़ा सा कंटेंट चेक कर सकते हैं. और वीना दास हो गई मैम, और कुछ जो भी कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट हैं, आप प्लीज उनका वर्क भी देख के जाइए कि उन्हें किस किस फील्ड में काम कर रखा है. एंड अगर वो फील्ड जो उन्होंने काम करी है वो फील्ड आपके यूपीएससी के सिलेबस से लिंक्ड है, तो आप उनके भी 1-2 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. जैसे मैंने एजुकेशन पे प्रोफेसर अभिजीत पाठक के 2 पॉइंट्स ऐड किए थे, एंड दैट परहैप्स कुड हैव प्लेड अ बेटर रोल. तो ये पेपर 1 में भी कर सकते हो, पेपर 2 में भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि उनका वर्क रेलेवेंट है आपकी यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग. एंड दैट विल फेच यू इवन मोर मार्क्स अगर आप कंटेम्प्रेरी ऑथर ऐड करते हो तो. Okay, thank you so much, ma'am, for your time. Yeah, all right. And also, so adding on to the same point, आपको सभी ऑथर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये मत सोचना कि इतने सारे ऑथर्स हो जाएंगे फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा. कोशिश करो कंटेम्प्रेरी, गूगल पे जाना, कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट, जो 5-6 टॉप नेम्स आएंगे आपको लगता है कि जो फेमस है, उनका देख लेना कि वर्क कौन कौन से फील्ड में है. जैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभिजीत पाठक सर का 5-6 फील्ड है उनकी. एजुकेशन में है, और एक रेडिकल पर्सपेक्टिव है, 2-3 चीजें हैं. तो देख लेना कि अगर आपके यूपीएससी से रिलेवेंट है तो 1-2 पॉइंटर्स उठाना, दैट इज ऑल. पूरी थ्योरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है उन लोगों की. मैम एक चैट में क्वेश्चन आया है, वो ऐसा है कि सपोज टू राइट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एनी कॉन्सेप्ट, एनी पर्सपेक्टिव, एनी गवर्नमेंट स्कीम्स, तो हमको पहले मेरिट्स लिखनी है फिर डीमेरिट्स लिखनी है, या वी कैन राइट देम सिमल्टेनियसली लाइक सेम पॉइंट में मेरिट एंड डीमेरिट? सो मैं क्या करती थी कि मैं पहले मेरिट्स देती थी, फिर मैं डीमेरिट्स देती थी, एंड जब मैं कंक्लूजन देती थी तो मैं डीमेरिट्स का एक सोल्यूशन दे देती थी. सो दिस वे एक सीक्वेंस में चला जाता था वो चीज, एंड कंक्लूजन बहुत पॉजिटिव एंड पे खत्म होता था विद सॉल्यूशंस या फिर विद अ फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव. तो वो नेगेटिव भी नहीं होता था बहुत ज्यादा, and it would always reflect that I am optimistic despite all those negatives that I have just listed. Okay, ma'am. Ma'am, one more question is that
आजकल पेपर 2 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो डायरेक्टली सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, हालांकि जैसे कास्ट टॉपिक है तो उससे क्वेश्चन आ रहे हैं. Suppose to give an example, there was a question in 2020, Whitehead's conception of caste, and ऐसे ही faction एक क्वेश्चन था, rural societies faction ridden. Then there was a question regarding muddled discrete caste and muddled hierarchies. So traditionally ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते थे. अभी 2-3 साल में देखा गया है कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो how to deal with such questions? या बिकॉज मैंने भी अभी यही बोला था कि कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि या तो पेपर 1 में कभी-कभी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आ जाते हैं, और जो पेपर 2 है उसमें कुछ नए ऑथर्स आ गए हैं. जैसे लास्ट ईयर एक लीला दुबे पे क्वेश्चन आ गया था, दैट लीला दुबे का उनका कॉन्सेप्शन क्या था अबाउट ब्रॉन्ज एंड अर्दन पॉट एनालॉजी वाला. तो इसके दो तरीके हैं. या सीड एंड अर्थ, सॉरी. एंड ब्रॉन्ज वाली जो थ्योरी थी वो उनकी ही थी, लेकिन वो दूसरी थी. सो इफ यू गेट सर्टेन क्वेश्चंस लाइक दैट, इसके दो ही तरीके हैं. अगर आपने पढ़ा है ऑलरेडी, जैसे मैंने पढ़ा हुआ था उनका लीला दुबे वाला पर्सपेक्टिव, तो मैंने वो ऐड कर दिया. बट नॉट एवरीवन हैज रेड इट. तो या तो आपको कुछ भी जेनेरिक समझ में आता है उसको लेकर, क्योंकि कई जो मेरे साथ बच्चे थे उनको सीड एंड अर्थ से थोड़ा थोड़ा जो रिलेट कर सकते थे उन्होंने वो लिख दिया. अगर आप ये करना चाहते हो कर लीजिए, क्योंकि आप जेनेरिक सोच के जाना कि इस पे क्या ही हो सकता है. तीसरा तरीका ये है कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आता है वो डाल दो, और इफ यू वांट टू लीव दैट टॉपिक छोड़ सकते हो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट. तो दो ही तरीके हैं. अगर आपने पढ़ा है लिख दो, नहीं लिख पा रहे हो तो बस कुछ भी जो भी आपको लगता है कि उसके अराउंड, अगर आपको लगता है कि अगर वो जैसे लीला दुबे आ गया था, तो कुछ लोगों ने ये सजेस्ट आई मीन सोचा था दिमाग में कि हो सकता है कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव हो, तो उन्होंने उसके अराउंड कुछ लिखा था. ऑल्दो वो करेक्ट नहीं था, बट उसके अराउंड लिखा था, तो कुछ कुछ मार्क्स उनको शायद मिले होंगे. तो ट्राई एंड राइट समथिंग और दी अदर. अगर व्हाइट हेड का जैसे आ गया अबाउट कंसेप्शन ऑफ कास्ट, तो यू हैव नो आइडिया, बट ट्राई एंड राइट समथिंग एंड जस्ट से कि व्हाइट हेड ने ये बोला था. क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि एक ही बुक में कुछ बोला होगा, नॉट एग्जामिनर ने भी नहीं पढ़ा होगा उसको. तो यू कैन राइट समथिंग और दी अदर अराउंड इट, एंड ऐसे क्वेश्चंस एक दो होंगे. तो आई मीन इट्स ओके इफ यू राइटिंग समथिंग अराउंड दोस टॉपिक्स जो रिलेटेबल हो. Okay, ma'am. Ma'am, like Ma'am, if you write something and if it is wrong, and if examiner thinks that it is wrong, will it not impact the other questions? नहीं, आई डोंट थिंक सो. मैम ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग, कि शुड वी वेट फॉर अ ग्रास्प अबाउट सिलेबस की चीज़ें याद हो जाएं उसके बाद लिखना शुरू करें, या फिर वी शुड स्टार्ट राइटिंग साइमल्टेनियसली? क्योंकि अगर अभी लिखना शुरू करते हैं तो सब्जेक्ट मतलब अगर सारे थिंकर्स वगैरह लाइन से याद नहीं है तो आंसर में क्वालिटी आती ही नहीं है. तो फायदा क्या है लिखने का? देखो, मैं इस चीज पे ना सिर्फ ये बोलूंगी कि आप पहले रिवाइज कर लीजिए जिसको अच्छे से, क्योंकि आंसर्स लिख लिए जाते हैं. अगर आपको याद आ रही होती है चीजें, आप फटाफट से आंसर लिख लेते हो. तो मैं हमेशा 60% ऑफ द वेटेज देती थी रिवीजन को, एंड बाकी का 40% वुड गो टू आंसर राइटिंग. एंड अगर आपको एक बार में रिकॉल हो जाता है अच्छे से, तो आप आंसर्स बहुत कम टाइम में भी अपना इंप्रूव कर पाते हो. Please give weightage to revision because that is the key. If you can't recall, you won't be able to write answers. And फिर आंसर्स आपके खराब आएंगे, आप डिमोटिवेट होगे. तो प्लीज रिवाइज करो पहले. एंड वंस यू सी कि आपके 5 से 6 बार रिवीजन हो चुके हैं, फिर आप लिखना शुरू करो. फिर क्या होता है, जब आप लिख रहे होते हो आंसर्स को, आपको रियलाइज होता है ओके फाइन, आई एम गुड विद दीज टॉपिक्स. मेरे को ये वाले टॉपिक अच्छे से नहीं रिवाइज हो रहे हैं, तो मुझे इन पे ज्यादा वर्क करना है. तो अब आप जब 5-6 बार रिवाइज करके जब आंसर्स लिखते हो, तो आपको अपने लूप होल्स पता चलते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे रिकॉल करने में दिक्कत कहाँ आ रही है, कौन सा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर्ड है, कौन सा नहीं है. फिर आप दोबारा जाओ रिवीजन करने, फिर रिवीजन करके दोबारा आओ. सो दैट इज अ कांस्टेंट चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल गो ऑन, रिवीजन एंड साइमल्टेनियस आंसर राइटिंग. सो डू दैट. एक चीज छोड़ के दूसरी चीज मत शुरू कर देना. दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली लेके चलो. दैट वुड बी अ स्वीट स्पॉट. Ma'am, Yeah. yeah. So, in the question that you mentioned about common sense and sociology, ऐसे बहुत ही questions आते हैं where there are two concepts linked. Generally in GS, in sociology, there are two concepts. Now, it is generally said that we should write the definition in the conclusion. But when there are two concepts, which definition should I choose to start with? What should be my introduction?
because दोनों के ही लिख नहीं सकते, that will take up a lot of space, and एक के लिखेंगे तो it may seem incomplete. So you can always start with the so in case question अगर सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस पे आता था, मैं एक फुल फ्लेजेड इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके चली जाती थी जहां मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है. So I would simply write that sociology is a you know concrete study of society, scientific study of society, whereas common sense is so and so forth. तो मेरे 4 लाइनों में मैंने दोनों को कवर कर लिया. So मेरा ओवरऑल पॉइंट यही रहेगा कि आप जो भी टॉपिक के नोट्स बना रहे हो वो नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर करो कि उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन आपके नोट्स में ही बने हो. तो जब आप नोट्स रिवाइज कर रहे होगे आप ऑटोमेटिकली एक आंसर रिवाइज कर रहे हो जो आंसर आप प्रोड्यूस करोगे. सो वट एवर टॉपिक यूर रिवाइजिंग, आई मीन वट एवर टॉपिक यूर थिंकिंग कि इसमें आंसर आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, तो कुछ कुछ जो टॉपिक्स होते हैं जो आपको प्रिडिक्ट कर सकते हो आप, जैसे ये हो गया, या फिर कोई डर्कहाइम को लेके क्वेश्चन हो गया, कोई भी थिंकर, तो आप डर्कहाइम पे आपने नोट्स बनाए, आप पॉसिबिलिटी सोच के जाओ कि इस पे 4 अगर तरीके का आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो मैं क्या एक इंट्रोडक्शन लिखूंगा. तो अपने नोट्स बनाने से पहले आप जब नोट्स बना रहे हो उसी में वही इंट्रोडक्शन आप स्टार्टिंग में लिख लो. तो मैंने भी नोट्स का जो स्ट्रक्चर था बिल्कुल एक आंसर की तरह रखा था. तो बॉडी उसकी काफी बड़ी कर लेना ताकि जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप बॉडी वहां पर कट एंड पेस्ट कर रहे हो. 2-3 एक्सेप्टेड कंक्लूजन्स लिख के चलना हर एक आंसर, हर एक टॉपिक के साथ. तो लास्ट में आके आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. वहां पर आपको दिख गया टॉपिक, आपको रियलाइज, आपको याद आ गया, अच्छा ठीक है इस नोट में मैंने यही इसका इंट्रोडक्शन लिखा था, आई विल सिंपली कट पेस्ट. तो ये चीज करके चलो. और सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में मैंने लिखा ही हुआ था एक इंट्रोडक्शन, वही मैंने हर जगह चेपा था जितने भी आंसर्स मैंने लिखे थे अपने टेस्ट सीरीज में या फिर फाइनल एग्जाम में. Okay, ma'am. And with regard to the third chapter in paper 1, that is research methods, there are not a lot of thinkers mentioned. So how do we approach answers for those? I mean, those सो topics. क्या रिसर्च में अगर आप नेहा भोसले मैम के नोट्स देखोगे ना उसमें काफी कुछ मिल जाएगा, लेकिन कोशिश करना कि उसमें ना आप जब भी वो उस टाइप के क्वेश्चंस आप एड्रेस कर रहे होगे, थिंकर्स अगर कम भी होंगे चलेगा, लेकिन उसमें आप बस क्लैरिटी से वो रिसर्च मेथड एक्सप्लेन कर देना, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट. Okay, एंड so while thinkers you're नहीं, while you're attempting that section, उस सेक्शन का ना मोटिव यही रहता है कि किसी इंसान को वो रिसर्च मेथड अप्लाई करना आता है या नहीं. तो आप उस क्वेश्चन के आंसर में जब भी आप नोट्स बना रहे होंगे, सी आई ऑलवेज रेफर टू नोट्स बिकॉज मुझे लगता है कि जो नोट्स में होता है वही आप प्रोड्यूस करके आते हो. तो मैं नोट्स बिल्कुल आंसर्स की तरह ही प्रिपेयर करती हूँ. सो व्हाइल मेकिंग नोट्स ऑन रिसर्च मेथड जैसे टॉपिक, मैं एक इंट्रोडक्शन सोच के चलती थी जो सब में कॉमन लिखूंगी मैं, जो थोड़ा आई मीन वेग सा, थोड़ा वास्ट, अच्छा से एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लेना. देन व्हेन इट कम्स टू बॉडी, तो हर एक रिसर्च मेथड का एक टॉपिक डाल लो एंड उसके नीचे वो उस रिसर्च मेथड को एक्सप्लेन करने की 3-4 लाइंस. उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दैट रिसर्च मेथड, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, एंड इवन आफ्टर डिसएडवांटेजेस व्हाट कुड बी बेटर थिंग्स दैट यू कैन अप्लाई. फॉर एग्जांपल कंक्लूजन में तुम ये लिख सकते हो कि हम लोगों को सप्लीमेंट करना चाहिए. अगर आप आंसर लिख रहे हो क्वालिटेटिव पे तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो सो प्रोज एंड कॉन्स बताए, फिर कंक्लूजन में लिख लो कि यू कैन आल्सो सप्लीमेंट क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेथड्स along with so and so other research methods which will add value to our research. That is your ready-made conclusion जो कि आप लिख रहे हो. तो इन टॉपिक्स में हमेशा आपके प्रोज एंड कॉन्स या फिर आप डिमेंशंस जितनी कवर करते हो वो इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो वैल्यू एडिशन में आप एक एग्जाम्पल डाल सकते हो कि so and so research was conducted using this same method and it was a fruitful research. कोई क्रिटिक मिल गया तो क्रिटिक डाल दो. तो ये सारे वैल्यू एडिशन पॉइंट्स है जो अपने नोट्स में ही डाल सकते हो. Okay, thank you, ma'am. And finally, one very last question. When you were choosing the questions which to attend in part A and part B, did you have something specific guidelines in your mind? कि ऐसे on the spot you decided depending on the number of points you have for the answers? Like definitely content is the key. अगर आपके पास content है, मुझे दिख रहा है कि उस क्वेश्चन में मेरे पास sufficient content लिखा हुआ है या sufficient answers मेरे already prepared है दिमाग में, नोट्स बने हुए थे, तो मैं वही अटेम्प्ट करूंगी because I'm more comfortable with those questions. Okay, thank you, ma'am. Thank you. All right. Any other doubt?
मैम विद रिगार्ड्स टू पेपर 1 एंड पेपर 2 रिलेटिवली किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मतलब क्योंकि पेपर 2 इज डाइसी एंड ऑलमोस्ट हाफ द पेपर इज करंट ओरिएंटेड, सो यू कैन नॉट रियली प्रिपेयर फॉर इट। तो पेपर 1 पे ज्यादा कमांड लेके चलनी चाहिए कि उसमें वी डू नॉट मिस आउट ऑन एनी लो हैंगिंग फ्रूट। सी पेपर 1 एंड पेपर 2 में ना कुछ कुछ टॉपिक्स भी ओवरलैपिंग है आपके। तो मैं क्या करती थी कि कुछ कुछ जो टॉपिक्स ओवरलैपिंग है, जैसे पॉलिटी एंड सोसाइटी, जो डेमोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप्स वाले कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, वो मैं सेम प्रिपेयर करती थी और साइड में नीचे को जाकर मैं बस इंडियन पर्सपेक्टिव ऐड कर देती थी। तो क्या होता था कि पेपर 1 पेपर 2 कनेक्ट हो जाता था। मेरे टॉपिक्स कम हो जाते थे पढ़ने के लिए कि अलग अलग नहीं पढ़ूंगी मैं उनको, सेम चीज पढ़ ली, दोनों में सेम चीज मैं लिख दूंगी। एंड अगर पेपर 2 में लिखूंगी तो पेपर 2 में 2-3 इंडियन एग्जाम्पल्स जो मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं वो मैं ऐड कर दूंगी। एंड इफ यू से कि कौन से पेपर को ज्यादा वेटेज दो, मैं बस इतना करती थी कि हर एक टॉपिक के लिए जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो चाहे 2 के लिए हो, दोनों का सफिशिएंट कंटेंट हो। टॉपिक अच्छा ठीक है, पेपर 1 से मैंने टॉपिक 1 लिया, पेपर 2 से मैंने टॉपिक 3 लिया, दोनों में अगर तुम मेरे नोट्स देखोगे, दोनों के नोट्स का कंटेंट लाइक 150 to 200 वर्ड्स रहता था और मैं बस उतना ही करके जाती थी। उससे ज्यादा ना मैं पेपर 1 में पढ़ती थी ना पेपर 2 में। जितना मैंने लिखा है, अपने आंसर बनाया है उस टॉपिक के लिए, उतना ही पढ़ के जाऊंगी। तो उससे इक्विवेलेंट टाइम मिलता था दोनों के लिए, ना मैं किसी को ज्यादा प्रेफर करती थी ना कम। बट व्हाट यू कैन डू इज, कुछ कुछ टॉपिक्स जो आपके मोस्ट प्रोबेबल हैं, जो आने वाले हैं या पॉसिबिलिटी लगती है, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, या फिर उनमें थोड़ा सा आप ज्यादा एडिशनल कंटेंट भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज जस्ट गिव इक्वल वेटेज टू एवरी टॉपिक एंड मेक ओनली डिजायर्ड अमाउंट ऑफ नोट्स फॉर एवरी टॉपिक दैट यू आर यूजिंग। अगर कोई थिंकर में आपको कंटेंट ज्यादा मिलता भी है, मार्क्स हो गया फॉर एग्जांपल, आपको दिख रहा है मार्क्स पे बहुत सारे टॉपिक्स आई मीन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये मत करना कि भैया उस पे एक बुक ही लिख डालिए अपने नोट्स में। जस्ट राइट 1 पेज, दैट इज इनफ। चाहे वो कितनी बार भी पूछेगा, आपके पास स्पेस आपको 250 वर्ड्स की एट मैक्स मिलेगी, उससे ज्यादा नोट्स बनाना ही मत। तो इतना टाइम किसी चीज में ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। Hello. Yeah, that was more or less about it. Hello, ma'am. I do have 2 questions regarding sociology. जी Ma'am, how did you contemporize the answers in sociology using current affairs? I mean, did you refer any source for contemporizing the answers? And my second question is, did you mention point-wise or in paragraphs in answers? For example, there is a question on Karl Marx. So, in case of criticism, did you mention point-wise criticism by Ralph Dahrendorf and Max Weber, or did you mention it in paragraphs? Okay, I'll give you an example about how to contemporize your answers in sociology. So मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो मैंने लिखा था टेस्ट सीरीज में. So that question was about how alienation, जो मार्क्स की थ्योरी है, how it is relevant in contemporary times. तो मैंने एग्जाम्पल दिया था about you know how in contemporary professions वो चीजें वर्क कर रही है, मैकडोनल्ड्स वगैरह में, वो लिख दिया था. फिर मैंने लिखा था कि नहीं, इसका क्रिटिक पॉइंट भी लिखा था कि कस्टमाइजेशन भी आजकल बहुत हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल भी कस्टमाइजेशन वाला वर्क काफी इंस्टाग्राम पेजेस हैं दैट पीपल आर गोइंग फॉर क्रिएटिविटी. तो मैंने डेली लाइफ एग्जाम्पल्स भी इसमें ऐड कर दिया था एंड दैट आंसर फेच्ड मी रियली गुड मार्क्स. तो लुक अराउंड फॉर डिफरेंट थिंग्स दैट आर वेरी रेलेवेंट टू दैट थ्योरी. तो अगर आप देखोगे एलियनेशन पे, यू कैन गिव सो मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम करंट कॉर्पोरेट लाइफ स्ट्रक्चर. फिर अगर एक क्वेश्चन आ गया एजुकेशन एंड सोशल चेंज, तो अब देखो एजुकेशन एंड सोशल चेंज आज के जमाने में कहाँ हो रहा है. कोई ऐसी पर्टिकुलर स्कीम है जिसने वर्क किया, या फिर कोई ऐसा एनईपी आई है जैसे, तो आप लिखोगे कि एनईपी का सोल मोटिव यही है कि एजुकेशन के साथ सोशल चेंज आ सकता है. सो दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स विल एड योर uniqueness as well as contemporary perspective to your answers. And अब आप ये पूछोगे कि ये चीज आए कैसे, क्योंकि ऑन द स्पॉट थिंकिंग बहुत डिफिकल्ट होती है. तो जब भी आप कोई टॉपिक के नोट्स बना रहे हो, अगेन नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उन नोट्स को ही मैं कनेक्ट करती थी कि अच्छा ठीक है, एलियनेशन अगर मैं टॉपिक लिख रही हूँ तो मैं सोचती थी क्या इसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है. अगर है तो 2-3 पॉइंट्स वहीं पे लिख लिए, ताकि जब मैं आंसर लिख रही होंगी तो मुझे वही पॉइंट्स लिखे, मैं वही एग्जैक्टली डायरेक्टली लिख दूं. तो कोशिश करो जब भी कोई भी टॉपिक के नोट्स बना रहे हो या कोई भी टॉपिक रिवाइज कर रहे हो,
कनेक्टेड टू कंटेम्प्रेरी लाइफ, कोई एग्जाम्पल मिल रहा है या नहीं, एंड एड ऑन. तो इस तरीके से ही यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म बिफोर यू राइट योर आंसर्स. एंड रिगार्डिंग हाउ डू आई यूज टू राइट, points, paragraph does not matter. As long as you're making your point clear to the examiner, it is sufficient. कैसे भी लिख लो. Okay, ma'am, but actually, while writing in paragraphs, sometimes we lack the coherence. While in writing point-wise, there is no need to follow coherence in answers. Yeah, go for points, whatever you're comfortable with. Certain people are more comfortable with paragraphs, and वो लोग वो maintain कर पाते हैं, flow भी maintain कर लेते हैं, और वो to the point लिखते हैं paragraphs में भी. तो जिसमें भी आप comfortable हो. मैं personally points ज्यादा लिखती थी, और जब जब मुझे लगता था कि ये चीज मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ पैराग्राफ में, तो वो मैं पैराग्राफ पे चली जाती थी. लेकिन पॉइंट्स में ये होता है कि हाँ, आप टू द पॉइंट रहते हो, आप बीटिंग अराउंड द बुश वो चीज नहीं करते हो. तो कोशिश करो पॉइंट्स में लिख लो, बट अगेन जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप बेस्ट आउटपुट दे पा रहे हो, वो चीज करो. Thank you. Ma'am, I went to your channel. So, on that, can you please upload your evaluated answer sheets of sociology? Yes, I'll. GS Yes. की है. ये GS का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है. जो हाँ. मैंने अपने चैनल पे एक गूगल ड्राइव लिंक डाला है, वो अपलोडेड है. लेकिन सोशियोलॉजी के मुझे मिल नहीं रहते. आई विल ट्राई एंड फाइंड देम, एंड वो मैं अपलोड कर दूंगी, जो रीसेंट वाली थी कॉपीज. And maybe some sample of your socio notes, if possible. आई विल ट्राई टू डू दैट, बिकॉज सी मैं कुछ सैंपल्स डाल दूंगी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों से, सो दैट यू कैन मेक सिमिलर सॉर्ट ऑफ नोट्स. लेकिन राइटिंग समझ में नहीं आएगी तुम लोगों को, तो बस मैं देख लेना कि किस तरीके से बनाए, सो दैट यू कैन मेक योर ओन नोट्स अकॉर्डिंग टू दैट. आई विल ट्राई टू डू दैट टुडे और टुमारो. Sure. And also about how, like, what was your approach for PYQs, socio? सो PYQs को लेकर, जैसे मैंने अभी बताया, मैंने 5 से 6 साल के PYQs डाउनलोड किए, एंड आई वुड सिट विद द सिलेबस, और या फिर कंटेंट लेके चलती थी मैं, और साइड बाय साइड पेंसिल से मार्क करते हुए चलो कि ये वाला टॉपिक हैज बीन आस्क्ड इन 2016 17, या फिर दिस टॉपिक हैज नॉट बीन आस्क्ड कभी भी. तो वो जब ब्रैकेट में आप लिखते चलोगे हर टॉपिक के आगे कि ये वाला टॉपिक इतनी बार रिपीट हो गया है हर साल, आपको लगेगा कि ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसको ज्यादा वेटेज देनी चाहिए. इसके अलावा मैंने विकास रंजन सर की वो एनालिसिस चेक किया था एक बार, जिसमें वो लिखते हैं कि ये वाला टॉपिक इज मोर प्रोबेबल, या इस टॉपिक से ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो वो एक बार देख लोगे ना, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, इस टॉपिक को उतना ही वेटेज से पढ़ना है, उसको उतना रिवाइज करना है. एंड ऑल्सो लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग, बिकॉज कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस का लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बट सेम चीज पूछी जा रही होती है. तो आप जब फाइनल में देखोगे ना उस टाइप के क्वेश्चन को, तो आपको थोड़ा सरप्राइज कम लगेगा. तो बस कोशिश करना कि वो ये देखो कि आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो जेनेरिक है, या कोई पर्टिकुलर थ्योरी पूछ रहे हैं, या फिर नेगेटिव, आई मीन इफ दे आर आस्किंग अबाउट प्रोज एंड कॉन्स बोथ. So just look at the kind of questions that they're asking. Okay, ma'am. Thanks. Thank you, ma'am. I All think right. All right. you have addressed all the queries, and thank you for your time and insight. And I'm sure that this session would be of great help to all the people who are writing mains with. I hope so. Thank you so much, ma'am. Yeah, I really hope so that you guys score really well in sociology. I tried to do whatever, I tried to take as many questions as possible, because I know कि इस वक्त गाइडेंस का थोड़ा कमी होता है, हमें नहीं समझ में आ रहा होता है. लेकिन आप बस ये सोचिए कि जितना आप कर रहे हैं, इट इज मोर देन सफिशिएंट. एंड कई बार आप जितना कम करके जाते हो ना, उतना ज्यादा फायदा मिलता है. तो जस्ट पुट इन इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट फॉर एवरी टॉपिक. हर एक में मिनिमम पढ़ो, जितना टू द पॉइंट आप प्रोड्यूस कर सकते हो. दैट इज ऑल. एंड फाइनली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो. और अभी 50 दिन है, बहुत टाइम है. तो अगर आपको लगता है कहीं कुछ चेंजेस करने हैं, कर लो आराम से. एंड फाइनली एक एडवाइस जो कि मैंने गलत की थी, और मैं नहीं चाहती कोई और रिपीट करे. फाइनल एग्जाम डे पे आप जब जा रहे हो, तो डू नॉट लेट दैट प्रेशर
you know be very heavy on you, because जब आप वो प्रेशर में आप आंसर्स लिख रहे होते हो तो कई बार जो आप ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स में बहुत अच्छे होते हो, आपका टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होता है, लेकिन फाइनली एग्जाम के प्रेशर की वजह से कई चीजें गड़बड़ होने लगती हैं जो आपको रियलाइज होगा वहां पर। तो प्लीज उस प्रेशर को हावी मत होने देना अपने ऊपर, और go with a very calm mind. Everything will fall into place and you all will score very good. So that's about it from my end, and all the best to everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.